क्लास 10th भूगोल संसाधन और विकास के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए इसके आज फाइनल हिस्से को हम बताएंगे। फाइनल पार्ट में बताएंगे हम संसाधन का विकास कैसे होता है और इसके अलावा बाकी अलग और पहलू भी हैं इसके अंदर संसाधन में, मिट्टी, भूमि और अन्य। तो चलिए हम देखते हैं संसाधन और विकास के इस पार्ट को कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके परीक्षा में बहुत ही आने वाला है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्लास 10th भूगोल डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। Let's start class 10 geography resources and development. We will learn in this chapter are डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का विकास, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का संरक्षण, लैंड रिसोर्सेज भूमि संसाधन, लैंड यूटिलाइजेशन भूमि उपयोग, लैंड डिग्रेडेशन भूमि क्षरण और संरक्षण, कंजर्वेशन, सॉइल एज ए रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी एक संसाधन के रूप में और मिट्टी का वर्गीकरण। संसाधनों का विकास। विकास मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। यह माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। परिणाम स्वरूप मानव में उनका अंधाधुंध उपयोग किया गया। इससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं पैदा हुई। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी हुई। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, जो बदले में समाज को दो भागों में विभाजित करता है, अर्थात अमीर और गरीब या अमीर और गरीब। Development of resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of the life. It was believed that the resources are free gift for nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problem: depletion of resources for the satisfying of the greed of a few individual, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into segment, that is haves and haves not, or rich and poor. सतत विकास। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Economic development means development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एकत्रित नेताओं ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। रियो कन्वेंशन ने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया और 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया। अर्थ समिट 1992 June, more than 200 heads of the state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was covered for addressing the urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving the sustainable development in the 21st century. This is the logo of Rio Earth Summit 1992. Now, resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of the resources. It is importance in the country like India, which has enormous diversity in the availability of the resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. These are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of the resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand,
Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in mineral and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance in water resources but lack of infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lack of water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital mineral. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local level. संसाधन नियोजन योजना संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत जैसे देश में इसका महत्व है जिसमें संसाधनों की उपलब्धता में भारी विविधता है। ऐसे क्षेत्र हैं जो कुछ प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं लेकिन कुछ अन्य संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संसाधनों की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर माना जा सकता है और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अन्य राज्य खनिजों और कोयले के भंडार में समृद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन ढांचागत विकास में कमी है। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बहुत अच्छी तरह संपन्न है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान देश के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग है। इसकी बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है लेकिन इसमें पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। Now let's start. Land resources. We live on land, we perform our economic activity on land and we use it in different way. Thus, land is natural resource of utmost importance. It is support natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful प्लानिंग। भूमि संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, हम अपनी आर्थिक गतिविधियां भूमि पर करते हैं और हम इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग करते हैं। इस प्रकार भूमि अत्यंत महत्व का एक प्राकृतिक संसाधन है। यह प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियां, परिवहन और संचार प्रणालियों का समर्थन करता है। हालांकि हम भूमि एक परिसीमित परिणाम की संपत्ति है, इसलिए उपलब्ध भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी पूर्वक योजना के साथ करना महत्वपूर्ण है। लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। नंबर 1 फॉरेस्ट, नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, barren and wasteland, land put to non-agricultural uses, example building, road, factories, etc. Other uncultivable land excluding fallow land, permanent pasture and grazing land, land under miscellaneous tree crops, groves not included in net zone area, cultivable wasteland left uncultivable for more than 5 agricultural area, fallow land, that is current fallow, left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year, other than current fallow, left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural year, net sown area, area sown more than once in agriculture area plus net sown area is known as gross cropped area. नंबर 1 खेती के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। बंजर और बंजर भूमि भी गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि जैसे इमारतों, सड़कों, कारखानों आदि अन्य असिंचित भूमि, प्रतिभूमि को छोड़कर स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि, विविध पेड़ फसलों के लिए तहत भूमि, उपवन, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं। कृषि योग्य अपशिष्ट भूमि से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दिया गया। प्रतिभूमि वर्तमान प्रति 1 या 1 से कम वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ी गई। वर्तमान प्रति के अलावा पिछले 1 से 5 वर्षों के लिए बिना खेती के शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष से एक अधिक से बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र
सकल फसल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, भूमि क्षरण यानी भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, कुछ मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, अधिक चराई, खनन और उत्खनन। द सॉइल ऑफ इंडियन आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, भारत की मिट्टी को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। नंबर 3 लेटराइट सॉइल। नंबर 4 एरिड शुष्क मिट्टी और वन और पर्वतीय मिट्टी। काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी को भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि काली मिट्टी के निर्माण के लिए मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर पश्चिमी दक्कन के पठार में फैले दक्कन ट्रैप बेसाल्ट क्षेत्र की विशेषता है। इसके और लावा प्रवाह से बनी है। वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करते हैं और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ साथ दक्षिण पूर्व दिशा में भी फैले हुए हैं। Black soil, these soils are black in color and are also called regur soil. Black soil is ideal for growing cotton and is also known for black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factor for the formation of the black soil. The type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over the northwest Deccan Plateau, and it is made of lava flows. They are cover plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, and extend the such southeast direction along with the Godavari and Krishna valleys. लाल और पीली मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। पीली और लाल मिट्टी का ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य गंगा के मैदानों, दक्षिण हिस्सा और पश्चिमी घाट के पीड़ामोंड क्षेत्र में पाई जाती है। क्रिस्टलीय और कार्यांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण इन मिट्टी का रंग काला हो जाता है। यह हाइड्रेटेड रूप में होने के साथ पीला दिखता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट लैटिन शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मिट्टी से के वैकल्पिक आर्द्र शुष्क आज मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र टकसाल का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी ज्यादातर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय पीएच होती है। Red and yellow soil. Red soil develop on crystalline igneous rocks in area of the low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in part of the Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along with the Piedmont zone of the Western Ghat. These soil develop reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrated form laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later which means brick. The laterite soil develop under tropical and subtropical climate with the alternate wet and dry season. The soil is result of the intense and leaching due to the heavy and laterite soil, mostly deep, very acidic in pH. अंत में पर्वतीय मिट्टी का जो है ये आपकी देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो है ये सब पर्वतीय मिट्टी का इलाका है। इसके बाद एल्यूवल सॉइल, ये राजस्थान के अंदर जो शुष्क मिट्टी पाई जाती है एरिड सॉइल। इसके बाद ये आपके देख रहे हैं ये वाला कलर रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद ये ब्लैक सॉइल जो है आपको जो है ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये एरिड सॉइल जो है ये आपको ये वाला इलाका दिखा रहा है राजस्थान का जो है। इस अध्याय को देखने और सीखने के लिए धन्यवाद। सभी प्रश्न करें, अगले अध्याय के लिए प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।